Hello students, good morning. A warm welcome to my channel VBA classes by Amrita ma'am. Today I'll be discussing an internal assignment of business communication, Narsimunji assignment. This is applicable for June 2023 examination. First of all, I think you all are aware about the writing pattern, as I have already discussed that while writing the answers, you should be very careful that you need to write the answers in your own words. आपको अपने own words में ही आंसर को लिखना है. There should not be any plagiarism issue. You can refer to any websites, any number of books. This is allowed. आप books refer कर सकते हो, study materials, anything. But आपको उसको अपने language में लिखना है. For that you can also means whatever you are writing, you can check in the plagiarism checkers are there in the Google. You can check and refer someone कि कहीं पर भी कुछ plagiarism issue नहीं रह जाए. नारसिमोन is very strict in this regard कि कहीं पर कोई issue ना है. Actually, university is encouraging students to write in their own language. It's more of, if you write in your own language, your presentation, your communication skills, your writing skills, everything will improve. So it is not that you need to write in a very high end English language. इतनी खतरनाक बहुत हाई फाई इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है. You can write the assignments or answers in a very simple language, but वो इंग्लिश सही होनी चाहिए, ग्रामेटिकल करेक्ट होनी चाहिए और कहीं से भी कॉपीड नहीं होनी चाहिए. राइट नाउ, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट विद माई फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग को दिया गया है, द क्वेश्चन इज, मिस्टर वरुण साहा इज द CEO ऑफ अ न्यू इवेंट कंपनी सेटअप 6 months बैक. The company has around 100 employees working in it. In order to discuss a new event or growth of the firm or any past events with the managers, what mode of verbal communication must Mr. Varun use and why? See, when we talk about business communication, first of all, आपको इसको ऐसे लिखना है, an introduction कि what is business communication. When we say business communication, simply its communication is a two-way process where a sender is intending to communicate something, a messages, an information, a news, anything to the receiver. So there must be two ends are there. One is the sender side and another is the receiver side. Now, there are two types of communication: verbal communication and non-verbal communication. Verbal, where we use verbal mode, is the use of language. When we use language, then it comprises of verbal communication. So, verbal will comprise of your oral as well as writing. Means जहाँ पर भी लैंग्वेज की यूज़ हो रही है वो मोड को हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन. एंड अनदर इज़ नॉन वर्बल. नॉन वर्बल का मतलब होता है वेयर वी यूज़ द जेस्चर्स. नॉन वर्बल इज़ एक्चुअली कंटिन्यूस, ये स्पॉन्टेनियस है, ये चलते रहता है. व्हेन वी टॉक, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं आप सामने हो या नहीं हो, मैं बात करते करते मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं. सो नॉन वर्बल इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू वर्बल. वर्बल में हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. नॉन वर्बल इज़ कंटिन्यूस. इट इज़ अबाउट आवर जेस्चर्स, आवर postures, our kinesics, or our pitch, tone, voice, volume. All these things are there. Our variations in our voice, all these things comprises of the non-verbal communication part. अब यहाँ पर बता रहे मिस्टर वरुण सर इज द CEO एंड ही इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद मोर देन 100 एम्प्लॉयज़. तो क्या मोड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल और क्या यूज़ कर सकते हैं? सी, whenever we have 100 or more employees, जब ज़्यादा employees होते हैं, so the most preferred form is written communication. But स्टिल अब जब CEO है और वो जब एक 100 एम्प्लॉयज़ को एड्रेस कर रहे हैं कि अबाउट द ग्रोथ ऑफ द फर्म और एनी पास्ट इवेंट, आई थिंक उनको पहले वर्बली स्पीचेस हो, आइदर मीटिंग्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो. अभी टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आर क्वाइट ईजियर वे. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ वन ऑफ द वे विच आई विल सजेस्ट कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और डायरेक्ट स्पीचेस या कॉन्फ्रेंस, डायरेक्ट जो कॉन्फ्रेंस होता है, फिजिकल कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स के थ्रू वो अपने 100 एम्प्लॉयज़ को एड्रेस कर सकते हैं. रैदर इट आई नॉट से मीटिंग, वो कॉन्फ्रेंस होगा, फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस जहाँ वो अपने अपने 100 एम्प्लॉयज़ को एड्रेस करके सारी चीज़ों को बता रहे हैं. वे डेफिनेटली ही विल यूज़ हिज स्पीच. During the conference he will speech, he will provide his speeches along with handouts and the presentation. वो presentation दे सकते हैं जहाँ पे वो अपनी कंपनी के ग्रोथ के बारे में
पास्ट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इट्स वेरी इजी बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन, जो फिजिकल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रही हूँ, तो कॉन्फ्रेंस में वो ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो ओरल कम्युनिकेशन इज़ द ईजिएस्ट वे, बिकॉज जब आप ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो वहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑलरेडी देयर, वो इंक्लूड रहता ही है. And there's a direct interaction. Employees can interact with them if they wanted to know anything, if they want to know, or they have any doubt or clarification, they can clearly solve it with the CEO directly, one to one हो सकता है. बट येस, जैसे मैंने वर्बल ओरल के बारे में बात की, वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ओरली, विजुअल प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस के दौरान, ही इज़ कम्युनिकेटिंग विद सो मैनी पीपल इन अ हॉल और सेमिनार्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर देयर. और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर वो ऑनलाइन में होता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. बट उसके संग रिटन कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, बिकॉज वो हैंड आउट्स प्रोवाइड करते हैं एंड एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग. उससे क्या होता है, जो भी मीटिंग्स हो रही है या जो कॉन्फ्रेंस में जो हम बोल रहे हैं उसके संग एक कम्प्लीमेंट के रूप में हैंडआउट्स वगैरह या रिटन मैसेजेस सेव रहते हैं. लाइक हम लोग जैसे कोई एक मीटिंग अगर हम अरेंज करते हैं, सो मीटिंग में हम पहले एक अपना एजेंडा डिसाइड करते हैं, देन वी कंडक्ट द मीटिंग एंड देन अ मिनट्स ऑफ द मीटिंग इज़ प्रोवाइडेड. इससे क्या होता है, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं मीटिंग के वो प्रॉपरली रहते हैं. तो इसी तरीके से वरुण as a CEO, he can definitely address his employees in a meeting or in a conference. He can orally present to all his employees about the new event, whatever is happening, or growth of the firm, along with complimentary written communication messages or the handouts, कुछ भी वो दे सकते हैं, which comprises of all the minutes of the meeting or the summary of the meeting, whatever it is. इससे क्या होगा, एक complimentary. So I think ये जो verbal communication का mode है जो वरुण यूज़ कर सकते हैं, इट विल कंप्राइजेज ऑफ बोथ द रिटन एंड ओरल, दोनों मोड का कॉम्बिनेशन होना अच्छा रहेगा. दिस इज़ माई सजेशन. आप इस पर इलेबोरेट करो. कोई स्टूडेंट इसको, जैसे एवरीवन विल राइट ऑन देयर ओन वर्ड्स डेफिनेटली, तो कोई इसको ओरल पे ही आप कम्युनिकेशन लिख सकते हो कि ही विल प्रेफर ओरल कम्युनिकेशन. आंसर वो भी गलत नहीं होगा, बिकॉज आंसर्स में ये और वो मीन्स ए और बी नहीं है. दिस इज नॉट एन MCQ. दिस इज योर वे ऑफ राइटिंग. यू नीड टू राइट ऑन योर ओन अकॉर्डिंग टू योर अजम्पशन. दिस वॉज माई अजम्पशन वेयर आई टोल्ड यू कि वर्बल कम्युनिकेशन में वो दोनों मोड को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं. बट आप क्या सोचते हो, वेदर रिटन मोड इज़ प्रेफरेबल और ओरल मोड इज़ प्रेफरेबल, कौन सा मोड होना चाहिए? This you can write. And one more thing, you can visit my blog where I have given lots of material regarding this. Oral communication क्या है, verbal communication क्या है, written communication क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी. You can refer it. And thank you students.